In the world economy, there is calculation of different variables, macro variables, to locate the quality of the country. That is known as classification of countries. Most popularly, World Bank and United Nations Development UNDP, both institutions calculate classification of nations on the basis of income and Human Development Index. Today, we will compare classification of countries done by World Bank through World Bank Development Report and classification of the countries by UNDP, United Nations Development Program, on the basis of Human Development Index, and compare it for our final conclusion that how can you calculate middle income trap or low income trap or high income trap? How can you find out trap on the basis of income calculated by World Bank and calculated by UNDP in terms of HDI? अभी हम लोग हिंदी में इसका वर्णन करेंगे ताकि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में अधिकांश विद्यार्थी हिंदी मीडियम में, दिल्ली में मुखर्जी नगर में बतला सिनेमा के बगल में आंसल बिल्डिंग कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में मेरा डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट का इकोनॉमिक्स एकेडमी यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज हिंदी मीडियम में स्थापित किया गया था। और राजेंद्र नगर राज कोचिंग के जस्ट बगल में है खान सर कोचिंग, बिहार वाला खान नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, प्रोफेसर है खान। और उसके 3 मकान के बाद सेकेंड फ्लोर पर डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिक्स एकेडमी स्थापित किया गया था। ये आराम से चल रहा था, लेकिन कोविड के समय में ये परिस्थिति चेंज हुआ और उसके बाद हम ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट किए। पढ़ाई लगातार चलता रहा और चल रहा है अभी भी। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि किसी भी तथ्य को माइक्रो और मैक्रो दोनों क्राइटेरियन पर मापा जाना चाहिए। अभी हाल में आप देखे होंगे कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट में 108 देशों को मिडिल इनकम ट्रैप में चिन्हित किया है। काफी इस पर डिस्कशन चल रहा है और हमारे चैनल पर भी कई इस पर लिखे गए हैं, व्याख्यान दिए गए हैं। और इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मिडिल इनकम ट्रैप कहना ये निगेटिव एस्पेक्ट है। ट्रैप का मेजरमेंट वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम से मापता है। हम सभी जानते हैं कि इनकम इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पीड, पॉलिटिकल सिचुएशन
युद्ध, war, pandemic, many variables are there to disturb the smooth increase and development of the nations. Therefore, taking only income criterion and declaring 108 nations, including India, in the middle income trap, without mentioning the damage to the whole world economy by carbon dioxide problem, climate change, causes of climate change, which country is doing more mischief to the natural development, nature's development. So all these are in being discussion. Today, I am showing you different classification of the economy, low, middle, high, on the basis of income and HDI, so that in any discussion you can be clear about this slang, middle income trap, 108 nations there. India is one of them. This negative approach must be prevented. There must be positive style of saying. So, अभी मैं डॉक्टर पीसी वर्मा इकोनॉमिस्ट, मैं 1973 से 2016 लगातार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरी पहचान है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इकोनॉमिक्स में लेक्चरर के पद पर चयन के प्रतियोगिता में पूरे बिहार में फर्स्ट आए थे। बीपीएससी में फर्स्ट श्रेणी प्राप्त किए और तब पटना यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चरर के पद पर बहाल किया गया। वहीं रह करके 1973 से 2016 में प्रोफेसर के पद से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद से रिटायर किया। टीचर नेवर रिटायर्स, and therefore I started teaching online, offline, competitive examination students, UPSC, RBI, NABARD, SBI, PO interview, Bihar Public Service Commission, Financial Service, where economics is there, and other states where economics are taught. All these, my discussion and classes are uploaded in YouTube under Dr. P.C. Verma Economist YouTube channel. YouTube channel has given me certificate, and it is written in that certificate that Dr. P.C. Verma teaches UPSC students. His material is original and unique. This is a prize to me for this work. Large number of students are working as deputy collector, police officers, commercial taxations, in NABARD officers, in RBI grade C, B officers. And my intention is to teach different types of examination where economics is there. And therefore, original theory and original books are being used by me for myself and for my students. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आपको हम दिखलाएंगे कि वर्ल्ड बैंक का क्या आधार है देश के, विश्व के देशों को बांटने का, तगमा लगाने का, और ये कहने का कि 108 देश जो है मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। ट्रैप इज ए नेगेटिव वर्ड।
It is ups and down in the process of development. And ups and down is here also in economics. Inflation, deflation. Ups, inflation, down, deflation. Up to recession, inflation, disinflation, depression, different stages are there. So this claiming that middle income trap for 108 nations without considering other variables than per capita income. Per capita income, we all know that in the economy, there is a parallel economy where large amount of money are being uh, uh, revealed by the authorities as black money. So income method alone taken and blaming this 108 nations as in a middle income trap is not correct. It must be supplemented by other development, and that is Human Development Index. That is the comprehensive human development consisting of education, health, sanitation, environmental degradation, quality of life. You might be seeing in newspaper or even the television news broadcast. That is the quality of air. In Delhi, quality of air. If you are inside Aerocity area in Delhi, Marriott Hotel inside, their quality index is very, very low. And if you out from this Marriott, the road, Aerocity area, suddenly it is triple. It means this is also a method of measurement, that what is the quality of air. Likewise, there are many variables which we can take, and that will be the correct macro method of measuring which country is low, middle, and high on the basis of different macro variables. तो इस क्लास में हम लोग ये व्याख्यान हमारा जो होगा वो विश्व बैंक ने क्या क्लासिफिकेशन किया और फिर एचडीआई के आधार पर यूएनडीपी ने क्या क्लासिफिकेशन कैसे हम लोग देखेंगे. विश्व बैंक ने आय को निम्नलिखित भागों में बांटा है. उच्च आय आप पढ़ो ना, निकालेगा अपना सब्जेक्ट. उच्च आय
उच्च मध्यम उच्च मध्यम निम्न मध्यम कम आय वर्गीकृत नहीं कुल 38 29 56 51 43 214 51 37 53 63 13 214 70 70 53 56 35 3 217 85 54 85 54 51 26 1 217
1990, 2000, 2010, 2023. विश्व बैंक देश विश्व बैंक देश वर्गीकरण। विश्व बैंक ने आय को निम्नलिखित विश्व बैंक ने विश्व बैंक ने आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण। विश्व बैंक देश वर्गीकरण। विश्व बैंक आय के आधार पर देशों का
1990 से 2023 तक ये आंकड़ों का विभाजन किया गया है। 1990 में उच्च आय में 38 देश थे, जो कि 2000 में बढ़कर 51 हो गए, 2010 में बढ़कर 70 हो गए और 2023 में बढ़कर 85 हो गए। इसका अर्थ हुआ कि उच्च आय में जो देश थे उसी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उच्च मध्यम आय में जो देश थे वो 1990 में 29 देश थे, 2000 में 37 देश थे, 2010 में 53 देश थे, 2023 में 54 देश हैं। तो उच्च मध्यम श्रेणी में भी देश की संख्या लगातार बढ़ रही है। निम्न मध्यम में 1990 में 56 देश थे, 2000 में घट करके 53 देश हो गए, लेकिन 2070 में फिर बढ़ के 56 हो गए और 2023 में 51। तो निम्न मध्यम वर्ग को अगर हम 90 की तुलना में लेते हैं तो 2023 में निम्न मध्यम वर्ग से 5 देश निकल गए, बाकी निम्न मध्यम में ही फंसे हुए हैं। इसको कहा जाएगा जाल, कि फंसे हुए हैं। इतने लंबे अवधि में उच्च आय वाला बढ़ गया 38 से 85, उच्च मध्यम भी 29 से बढ़ के 54 और निम्न मध्यम जो है वो 56 से घटा लेकिन 51 पर आ गया और 56 से 53 हुआ, 53 से फिर 56 हो गया, फिर 56 से 51 हो गया। अब इसमें ये पता लगाना चाहिए और ये एक्सप्लेनेशन विश्व बैंक को देना होगा कि 53 से 56 कैसे हो गए। 56 से 53 हुए, इसका मतलब विकास का ग्रोथ अच्छा रहा, और 53 से फिर 56 हो गए वापस। क्या कारण था? युद्ध था, नेचुरल कैलेमिटीज था, क्लाइमेट चेंज का पोजीशन था, इंटरनल रिफ्ट था, वार था, क्या था? ये चीज महत्वपूर्ण है। नंबर 4 में है कम आय। तो कम आय वाले में आप देखिए 1990 में 51 देश थे, 2000 में कम आय वाला देश फिर बढ़ के हो गया 63। वर्ष 2000 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 2010 में फिर घटकर कम आय वाला हो गया 35 और 2023 में कम आय वाला घट के हो गया 26। इसका क्या कारण है? इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, सोशल एक्टिविटीज, हेल्थ, सैनिटेशन, क्या कारण ऐसा है कि कम आय वाला 51 था और आज घट के 26 हो गया? बाकी इसमें से सारे देश निकल के मध्यम आय में चले गए। 5वां में है वर्गीकृत नहीं, जिसको कि वर्गीकृत नहीं किया गया था उस समय 1990 में, उसमें 43 थे, 2000 में 13 हो गए, 2010 में 3 हो गए, 2023 में 1 हो गए। मतलब कि वर्गीकृत जितने भी थे वो नहीं थे, वो वर्गीकृत में आ गए और संख्या पूरा 2090 में 214 देश थे, 2000 में 214 देश थे, 2010 में 217 देश हुए, 2023 में 217 देश हुए। इसका कारण है कुछ देश बढ़ता है, टूटता है, 2 भाग हो जाता है। भारतवर्ष देखिए, आजादी आजादी आजादी, कोई कहता हम इतना साल जेल में रहे, कोई कहता इतना किए। क्या किए आप? 10 साल और हम लोग को छोड़ देते।
47 के बजाय 57 में हम लोग आजाद हुए होते, लेकिन पूरा देश हमारा रहता। ये अब सोचने की बात है। आज देखिए क्या स्थिति है। भारत का ही हिस्सा है, दो हिस्सा, जो अभी जूझ रहा है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, नॉन डेवलपमेंट और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स डोमिनेट कर रहा है। और इससे उतना एरिया जो भारत का था, जो आज दो कंट्री में बटा हुआ है, उसका ग्रोथ रेट एकदम कम हो गया। वो भी इसमें शामिल होगा। तो इस तरीके से विश्व बैंक ने आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण किया है, और आय वर्गीकरण को चार भागों में बांटा है। उच्च आय, उच्च मध्यम, निम्न मध्यम और कम आय। और वर्गीकृत जिस समय नहीं था वो था, अभी के समय में वर्गीकृत सारा हो गया है। कुल संख्या 217 है। तो इस प्रकार आप इस पर अपने सूझबूझ से और इसे खोज सकते हैं कि क्यों निम्न वर्ग वाला 56 से 56 ही रहा। मतलब 1990 और 2010 देखिए, तो 10 साल और 10 साल, 20 साल में 56 वाला 56 ही रहा। और उसके बाद अगर आप लेते हैं 23 और 10, 33, 33 साल में 56 जो है 51 पर अटका हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में, जो मेरा डॉक्टर पीसी बरा इकोनॉमिक्स चैनल, उसमें देखिएगा, कई बार हम इन सब का जिक्र वहाँ किए हुए हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जिससे कि निम्न मध्यम ट्रैप में फंसा हुआ है, मध्यम वर्ग के पीछे पड़े हुए हो। मध्यम वर्ग का ट्रैप आय निकाल रहे हो, मध्यम वर्ग आय ट्रैप में। अरे ध्यान दो, जो कम आय वाला है उसको तुम ट्रैप में रखे हुए हो, और क्यों है इस पर विचार करो। ये मेरा उद्देश्य है। तो ये विश्व बैंक देश का वर्गीकरण हुआ जो आपको बताए। अब जो दूसरा आधार हम लोग वर्गीकरण का करेंगे, वो यूएनडीपी मानव विकास एचडी वर्गीकरण के आधार पर होगा। वर्ष वही रहेगा, लेकिन क्राइटेरिया बदल गया। यूएनडीपी मानव विकास एचडी वर्गीकरण अति उच्च, अति उच्च एचडी, उच्च एचडी।
मध्यम, मध्यम HD, कम HD, कम, मध्यम HD, कम HD, 47, 18, 25, 70, 160, 53, 53, 23rd, 44, 173, 47, 46, 46, 37, 176, 69, 49, 41, 26, 185, nineteen 90, 2000, 2010, 2022. Worse.
वर्गीकरण। यहाँ हम लोग यूएनडीपी मानव विकास एचडी वर्गीकरण के आधार पर विश्व के देशों को बांटा गया है। वर्गीकरण में पहला है अति उच्च एचडी। एचडी का मतलब हो गया मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। इनकम से ज्यादा महत्वपूर्ण है ह्यूमन डेवलपमेंट। नोबेल प्राइज मिला है इसको खोजने के लिए। इनकम तो शुरू से आज तक इनकम ही रहा है। इनकम के बारे में हम सभी जानते हैं, जीडीपी इज द सोल ऑफ द इकोनॉमी। किसने कहा? 1971 में साइमन कुजनेट को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि कुजनेट जो है वो जीडीपी का आविष्कार किए। जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हो रहा था न्यू हैम्पशायर यूएसए में 1944 में, इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी थे, जॉन मेनार्ड केन्स भी थे, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, और इंडिया भी रिप्रेजेंट की थी। और उसी समय में ये जीडीपी का डेवलपमेंट हुआ और सारे देशों का जीडीपी निकाला गया। तो वो राय आय से संबंधित था। लेकिन बाद में चल करके नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन और इनके सहयोगी लोगों ने यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक का आधार जो एचडी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या पढ़ता है, क्या बीमारी है, सारे इंडिकेटर्स को, स्कूल में कितने दिन स्कूल में रहता है, साल में कितने दिन स्कूल गया, कितने दिन एब्सेंट रहा, कितना चौथा पांचवा के बाद छोड़ दिया स्कूल। गांव में देखिएगा 4 क्लास पढ़ा छोड़ दिया, 8 क्लास पढ़ा छोड़ दिया, तो इसको जो स्कूल छोड़ने वाला वो इंडेक्स क्या है, सारे को मिला करके ये मानव विकास सूचकांक बनाया गया, जिसके आधार पर देशों का वर्गीकरण। अति उच्च एचडी 1990 में 47 था, और देखिए विकास के कारण 2000 में 53 हो गया। फिर 2010 में कारण पता कीजिए 47 हो गया, और 2022 में अभी ये अति उच्च एचडी में 69 का देश है। उच्च एचडी में 1990 में 18 देश थे, 2000 में 53 देश थे, 2010 में घट के 46 हो गए, 2022 में घट के 49 हो गए। ये फिर इसमें शोध का विषय है कि क्या कारण था। मध्यम एचडी में 1990 में 25 देश थे, 2000 में 23 देश हो गए, घट गया, 2010 में 46 हो गए, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया।
2022 में कितना हो गया, 41 हो गया। तो मध्यम एचडी जो है संख्या बढ़ गया। कम एचडी, कम एचडी था 1990 में 70, 2000 में 44, 2010 में 37 और 2022 में 26। इसका मतलब हो गया कि कम एचडी वाला जो है वो शिफ्ट कर गया दूसरे कैटेगरी में, उसकी इनकम बढ़ गई। कुल देशों की संख्या जो है 160 है 1990 में, 173 है 2000 में, 176 है 2010 में और 2022 में 185 है। जबकि हम लोग 2023 में लिए हुए हैं 217। विश्व बैंक का जो वर्गीकरण उसमें देश की संख्या है, तो एक साल में जो 23 में 217 है यहाँ, और यहाँ 2022 में 185 है। फिर आगे का जो आएगा उससे आपको पता चलेगा। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में संख्या में परिवर्तन है। 1990 में 38 देश है अ, विश्व बैंक के वर्गीकरण के आधार पर ऊंचाई में, और ऊंचाई में यहाँ जो है उच्च एचडी में 18 देश है। उच्च मध्यम है, इसके क्राइटेरियन में मध्यम एचडी है, निम्न मध्यम में 56 है और यहाँ मध्यम एचडी में 25 है। तो अगर हम लोग उन्हें 2022 का तुलना करें 2023 से, तो क्या पाते हैं कि उच्च आय में, अति उच्च आय में यहाँ 69 है एचडी के आधार पर, और इनकम के आधार पर 85 है, और मध्यम एचडी में यहाँ 51 है और यहाँ 41 है। इस तरीके से कुल देश 217 है 2023 में, यहाँ 2022 में 185 देश को ही लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग आधार पर अगर आप मेजरमेंट करते हैं नेशन को कि कौन सा देश विकसित देश है या कौन सा जो है उच्च विकसित है, अति उच्च है, मध्यम है, तो किसी एक क्राइटेरियन को अगर लेंगे तो रिजल्ट आपका सही नहीं होगा। इसलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब भी कंपैरिजन कीजिए तो दो तीन तरह के इंडेक्स से नापिए और सबका प्रकाशन कीजिए, इसके आधार पर जो शोधकर्ता है वो आगे रिसर्च कर सके। तो आज इस चीज को हम लोग देखें कि विश्व बैंक का वर्गीकरण और यूएनडी का, एचडी का वर्गीकरण, दोनों में अंतर है, लेकिन ये क्लियर है कि उच्च आय ग्रुप में दोनों में अधिक है और मध्यम में कम है और कम वाले में घट रहा है। इसका अर्थ हुआ कि विकास जो है कम वाले देशों में जो हो रहा है। इसलिए आप देखिए यूएनडीपी के आधार पर कम एचडी में क्या 26 पर है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में हमारा देश भी पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छा प्रगति किया है, और इससे हमारे यहाँ 25 करोड़ जनसंख्या को इस क्राइटेरियन के आधार पर गरीबी रेखा के बाहर माना गया है। सतत विकास सूचकांक एसडीआई और आय के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं।
इस चित्र के द्वारा ये दर्शाया गया है कि एचडीआई और एसडीआई दोनों को एक साथ लेकर के चलिए, तब हम पाते हैं कि 0.4 और 0.6 दोनों के बीच में कम देश रहे, और 1.8 में भी काफी देश पहुंचे हुए हैं, और 1 और 1.2 के बीच में अधिक से अधिक देश पहुंच चुके हैं। ये शो कर रहा है कि कि एचडीआई, एसडीआई और एचडीआई दोनों में विकास तेजी से हो रहा है।
इस इस चित्र के द्वारा एसडीआई एसडीआई और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय डॉलर में इस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के देखा गया कि जो डॉट्स है वो देश के को प्रदर्शित करता है। तो कैसे देश जो है वो 20,000 वाले ग्रुप में फंसा हुआ था और धीरे धीरे देश शिफ्ट कर रहा है 100 और 120 1 लाख और 1,20,000 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय डॉलर में वो शिफ्ट कर रहा है। तो ये आपको ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग आपको विकास का सूचक है। कैसे प्रति व्यक्ति सकल आय जो है और एसडीआई का कॉम्बिनेशन लगातार वो 0 से 120,000 की ओर शिफ्ट कर रहा है, ये दर्शाता है। तो इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मध्यम आय जाल और भारत का हाल इस तरह का व्याख्यान न दे करके सही रूप में ये बतलाया जाए कि विश्व बैंक देश का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है और यूएनडीपी मानव विकास एचडी वर्गीकरण में किस तरह का वर्गीकरण किया जाता है और दोनों के आधार पर सतत विकास सूचकांक एसडीआई और आय के बीच में क्या कोरिलेशन है, सहसंबंध है, और एसडीआई और एचडीआई दोनों के बीच में क्या सहसंबंध है, कोरिलेशन है, इन सभी को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि कौन कंट्री जाल में है और कौन कंट्री जाल के बाहर है। केवल एक इनकम के आंकड़े पर 108 देशों को आ, मध्य आय के जाल में फंसा हुआ कहना ये उचित नहीं है, ये डिस्करेजिंग है। देश के विकास के लिए यूएनडीपी हर हाल में कहता है कि मानव विकास सूचकांक पर ध्यान दें और जो वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से पूरे अर्थव्यवस्था वर्ल्ड विश्व इकोनॉमी को प्रभावित करता है वो है आपको गरीबी। चाइना में गरीबी का कम होने से पूरे विश्व का गरीबी दर घट गया। भारत में 25% लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, तो पूरे विश्व का जो वर्ल्ड का पॉवर्टी इंडेक्स है वो घट गया। तो इस तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, न कि मध्य आय के जाल में भारत फंस गया। इस तरह का ये पॉलिटिकल स्लोगन इकोनॉमिक्स में नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में आपको दिखलाए कि एचडीआई और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के बीच में कॉम्बिनेशन करके देखिए कि राष्ट्र का कैसे विकास हो रहा है। उसी तरीके से सतत विकास सूचकांक एचडीआई और आय प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के डॉलर में उससे कंपैरिजन कीजिए कि क्या विकास हो रहा है। देश का वर्गीकरण किस आधार पर आपने किया है उसके आधार पर आप विकास के सूचकांक को देखिए और ओवरऑल मैक्रो मैक्रो टारगेट मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि
जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है उसका वो प्रोडक्शन हो रहा है, इन सभी पर क्या रोक लगा है और कितना कम हो रहा है। ग्रीन हाउस के बारे में देखिए और क्लाइमेट चेंज के बारे में देखिए। आय, ठीक है, आय महत्वपूर्ण वेरिएबल है, हम लेंगे इसको, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, जहाँ एजुकेशन भी है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, या पिछड़े देशों में जाके देखिए ना। एक साउथ अफ्रीका में देखिए, कई जगह का हम वीडियो देखे जिसमें ओपन फील्ड में 500 स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसको पढ़ाया जा रहा है। बिहार में आके देखिए, एक पढ़ाने वाला है और वो उस उसके क्लास में 2000 लड़का बैठा हुआ है। क्या इंडिकेट ये करता है? इस पर सोचने की बात है, और इसके अनुसार आपको पॉलिसी बनाना होगा। 1000 2000 लड़का एक बड़े से हॉल में बैठता है और वो फिजिक्स पढ़ रहा है, वो जनरल नॉलेज पढ़ रहा है, वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। जगह जगह पर बड़ा बड़ा सा लगा हुआ है, कि ऑटोमेटिक आप उसे स्क्रीन लगा हुआ है, उसे स्क्रीन पर देखिए। शादी विवाह में जाइए, आप कहीं बैठे रहिए, दूल्हा दुल्हन का क्या फंक्शन हो रहा है आपके सामने में स्क्रीन पर आ रहा है। और वो बैठा हुआ पूरब में, आप बैठे हुए पश्चिम में, लेकिन आपको सब दिखाई देगा। तो अभी का जो सिचुएशन है वो बहुत ही होलिस्टिक है। इसको आप एक पॉइंट लेकर के नहीं चल सकते हैं। इससे राष्ट्रीय आय और जीडीपी ये सब आधार है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा उपयोगी आधार है एचडीआई। एसडीआई पर कैपिटा सकल राष्ट्रीय आय तो है ही, और इसको वर्ल्ड बैंक भी मानती है। और यहाँ तक कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा कि जितने देश हैं सबका पर कैपिटा इनकम निकालिए, सबका नेशनल इनकम निकालिए, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम निकालिए, और तब उसके आधार पर बांटा जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो विध्वंस हुआ था, फ्रांस को सबसे ज्यादा लॉस हुआ था, कई देशों में रेलवे लाइन पूरा खत्म हो गया था, या कोई इरिगेशन डैम उड़ा दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, जिनको उनको रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक, जो आईबीआरडी के नाम से उस समय था, तो रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, और उसी का एक हिस्सा है वर्ल्ड बैंक। तो वो दोनों अलग अलग फंक्शन करता है। उसमें कैसे किसको कितना लोन दिया जाए, हेल्प किया जाए, इस पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, उसमें जेम केन्स भी वहाँ इकोनॉमिस्ट के रूप में इंग्लैंड से थे, और रूजवेल्ट जो अमेरिका के 4 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, जिन्होंने महान मंदी के समय में 160 लाख बेरोजगारों को 2 साल में रोजगार में लाया, और केन्स के सिद्धांत को, केन्सियन थ्योरी और प्रिस्क्रिप्शंस, डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का इस्तेमाल किया। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जेम किन्स को इनवाइट किया इंग्लैंड से, गई अमेरिका में, और एक सोल्यूशन निकाली कि कैसे 160 लाख आदमी बेरोजगार हो गया अमेरिका में 1930s के ग्रेट डिप्रेशन में। 60 लाख जर्मनी में बेरोजगार था, 30 लाख अमेरिका इंग्लैंड में बेरोजगार था। तो कैसे इसको रोजगार में डाला जाए, अमेरिका में उनको इनवाइट किया गया। उन्होंने अपने सारे जो रिसर्च तैयार किए, किताब लिख रहे थे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टेस्ट एंड मनी, जो 1936 से प्रकाशित हुआ। लेकिन उनके सारे थ्योरी को उन्होंने 1932 से 33 के बीच में यूएसए में एक्सपेरिमेंट किया। और क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर कोई काम नहीं मिलता है और तुरंत रोजगार देना है, रूजवेल्ट कह रहा तुरंत हमको रोजगार दीजिए। तुरंत रोजगार कैसे होगा? हमारे बिल्डिंग बनाएंगे टाइम लगेगा, रोड बनाएंगे टाइम लगेगा। जेम्स ने कहा कि अगर इस तरह का बात है तो शॉर्ट रन में तुरंत रोजगार देने के लिए डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस, ये लाइन है उनकी किताब में, जनरल एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मनी किताब को खोल के देखिए, लिखा हुआ है डिगिंग होल्स इन गोल्ड लाइंस, गोल्ड माइंस, डिगिंग होल्स इन गोल्ड माइंस। और वही काम किया गया, गोल्ड माइंस में डिगिंग कर रहा है, निकला बाहर, उसके हाथ में डॉलर दिया गया।
बाजार में गया, सामान खरीदा, ओवर प्रोडक्शन की समस्या साल भर में दूर हो गई और रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। प्रोड्यूसर्स कॉल करने लगे, जो अपने एम्प्लॉय हैं उनको कॉल बैक किया, और धीरे धीरे जो लोग वहाँ खान में सोना के खान में काम कर रहे थे, धीरे धीरे वापस लौट गए। और 1933 में 160 लाख आदमी बेरोजगार था, और 1935 में सारे के सारे रोजगार में चले गए। और तब सरकार ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी, या जो बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता दिया जाता है, इस सब तरह का कई तरह का रिफॉर्म किया। तो इस तरह से इसे करने से हम लोग पाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन में सीट है 2000, और लड़का अपियर हो रहा है 5 लाख। और वो उसको बार बार अपियर होने के लिए 35 साल उम्र दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर, लेडीज के आधार पर, CST के आधार पर, बैकवर्डनेस के आधार पर। उम्र उसका 38, 35, 34, 35 वर्ष तक वो परीक्षा देते रहेगा, हाफ ऑफ द लाइफ परीक्षा देता है, मर गया। सीट कितना है? 2000 सीट है, 5 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहा है। किसी भी मेथड से आप निकालिएगा तो फाइनली तो 2 ही हजार आपको रोजगार दे पाए। तो ये जो 5 लाख आदमी में 2000 आप चुने, रेस्ट को आप फंसा करके रखे 10 साल, तो खत्म हो गया। वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ एनर्जी ऑफ लार्ज नंबर, इसको सही तरीके से कैसे किया जाए। जो अभी की सरकार अप्रेंटिसशिप निकाली है कि हर कंपनी में 1 साल के लिए जाएगा, ट्रेंड होगा। ट्रेंड होगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रोडक्टिव काम मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या है कि आप कंघी बेच रहे हैं, किसके बीच में? तो जो बॉल हेडेड बिकेगा कंघी। 2000 पोस्ट है और 6 लाख आदमी उसके में अपियर हो रहा है। किसी भी मेथोडोलॉजी से लीजिएगा तो 2 ही हजार ना जाएगा या 4000 जाएगा। रेस्ट जो रेजिड्यूअल है फिर अगले साल वही आएगा। और कोई संख्या नहीं क्या 2 ही साल देंगे, देते रहिए, विभिन्न कैटेगरी को एक देते रहिए, मतलब फंसाए रखिए उसको। और लास्ट में उसको ना एज रहेगा ना उम्र रहेगा। कई लेक्चर की बहाली जब हुई है, वो बहाल हुआ है, 5 साल में रिटायर कर जाएगा। इतने दिनों तक आप सीट को रोके रखे, लास्ट में एक बैग पूरा निकाल दीजिए। तो ये सब रियलिस्टिक अप्रोच है, जिससे कि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं, कंट्री को नीचे के निम्न आय वर्ग से मध्यम, मध्यम से उच्च श्रेणी में ला सकते हैं। थैंक यू for watching this video. Like it, share it among friends, and discuss among friends.